Hello, good morning, student. So today we are going to discuss our next chapter from the history. The chapter name is clothing, a social history. So let's start this chapter. It is easy to forget that there is a history to our clothes we wear. All the cities observe a certain rules. Some of them quite strict about the way in which man and woman and children should dress, or how different social classes and groups should be present themselves. This the terms comes to define the identify of people, the way they see themselves, the way they want others to see them. They shape are the options of a grace and beauty, idea of modesty and shame. As times change and the societies are transformed, these nations are also alter modification in the clothing come to reflect these changes. The emergence of the modern world is marked by a dramatic change of clothing. In this chapter, we will look at some of the histories of the clothing in the modern period, that is, in the 19th and the 18th century. They are these centuries important. Before the age of the democratic revolutions and the development of the capitalism market in the 18th century Europe, most people dressed according to their regional codes and were limited by the types of the clothes and the cost material that were available in the region. Clothing styles were also strict regulated by the class, gender, or the status, the social hierarchy. For the 18th century, the colonialism of the most of the world, Europe, the spread of democratic ideals, and the growth of the history society completely changed the ways in which people thought about the dress and its meaning. People could use the styles and materials that were drawn from the other cultures and locations, and Western dress styles for men were adopted worldwide. Chapter 1, you have seen how the French Revolution transformed many aspects of the social and the political life. The revolution also swept an existing dress code known as the Century Laws. Let us briefly at what these laws were. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि बेसिकली आपने हिस्ट्री में देखा होगा और अभी तक की हिस्ट्री आपने जानी होगी कि क्लोथिंग क्या है, टाइम टू टाइम चेंज होते जा रही है. इसके साथ साथ एक और बात ये भी है कि क्लोथिंग जो स्टाइल है ये कहीं ना कहीं आपको ही जो है रिप्रेजेंट करता है. मतलब आप किस तरह के हैं, किस तरह की आप सोच रखते हैं, ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है. इसके साथ साथ यहाँ पे और भी चीज़ें ये बताएंगी कि पुराने समय में जो टाइम था उस समय में मेंस के लिए एक तरह का क्लोथ जो है वो डिसाइडेड होता था, वुमेन के लिए वैसे ही एक डिफरेंट टाइप का क्लोथ डिसाइडेड होता था और ये काफ़ी उसी तरह से चला आता था. मतलब इसको बदल के कोई और कुछ नहीं पहन सकता. तो ये सारे रूल्स जो थे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे. आप नॉर्मली भी देखते होंगे कि कई रिलीजन्स जो हैं वहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स का क्लोथिंग होता है. कोई कुछ पहनता है तो कोई कुछ पहनता है. तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं क्लोथिंग हिस्ट्री से रिलेटेड है. अब यहाँ पे बताया गया है कि कई सारे आपने देखे होंगे कि कई कई जगह पे जो होते हैं ड्रेस कोड होते हैं कि आपको इसी तरह का जो है ड्रेस पहनना है. तो ये सारी चीज़ें उनसे रिलेटेड हैं. इसके साथ साथ मैन और वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो कई सारी चीज़ें, कई सारे ऐसे कल्चर्स हैं जो हमने अडॉप्ट किए हैं कि मेंस के लिए इसी तरह का है तो हम भी यही पहन रहे हैं, वुमेन के लिए इस तरह का है तो वो इस तरह की चीज़ें पहन रही हैं. अब यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात की गई है. जैसे कि आपने देखा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ था तो सोशल और पॉलिटिकल लाइफ में जो था काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए थे. तो कई तरह की जो है इसे एक जो ड्रेस को डिसाइड हुआ था उसमें इसे सब्चुरी लॉज कहा जाता था. तो चलिए देखते हैं ये क्या थी और किस तरह की थी, हम आगे देखेंगे. Sumptuary laws and the social hierarchy. In the medieval Europe, dress code was sometimes imposed upon the members of the different layers of the society through the actual laws, which were spelled out in the some detail. From about 1294 to the time of the French Revolution in 1789, the people of France were expected to strictly follow what were known as the sumptuary laws. The laws tried to control the behavior of those considered social inferiors, preventing them from the wearing a certain clothes, consuming certain foods and beverages. Usually, this referred to alcohol and the hunting game in a certain areas. Only the royalty could wear the expensive material like ermine and the fur, or the silk, velvet, and the brocade. Other classes were liberated from the clothing themselves with the material that were associated with the aristocracy. The French Revolution ended this distinction, as you know from the chapter 1. Members of the Jacobin clubs even called themselves in the sans culottes to distinguish themselves from the aristocracy, who wore the fashionable knee breeches, and sans culottes literally meant those without the knee branches. And from now on, both men and women began wearing clothing that was loose and comfortable. The colors of the France, blue, white, and red, became popular as they were a sign of the patriotic citizen. Other political symbols too became a part of the dress. The red cap of liberty, long trousers, and the revolutionary cockade pinned on a hat. The simplicity of the clothing was meant to express the idea of equality.
अब देखिए यहाँ पे सम्पटरी लॉज जो है ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो समय चल रहा था मिडल यूरोप में, उस समय ड्रेस कोड जो है ये सारी चीज़ें इम्पोज की गई थी डिफरेंट मेम्बर्स ऑफ द पीपल पे, क्योंकि ये डिफरेंट सोसाइटीज़ जो है ये स्पेल्ड कर दी थी। ये जो टाइम था, इस टाइम पे जो फ्रेंच सोसाइटी ने ये एक स्ट्रिक्ट रूल जो थी ये फॉलो करती थी, और इसी रूल को हम कहते थे सम्पटरी लॉ। और जो ये लॉ था ये ट्राई टू कंट्रोल करता था बिहेवियर को, सोशल इन्फेरियर्स को, सारी चीज़ों को प्रिवेंट करता था इन्फ्रंटी, मतलब एक पर्टिकुलर लेवल पे एक जो पर्सन है उसको इस तरह के कपड़े पहने, इस तरह की बेवरेजेस लेने हैं, इस तरह की चीज़ें जो थी ये कंटिन्यू चलती आ रही थी। अब इसके साथ साथ देखिए दूसरी चीज़ें जो बताई गई हैं कि मटेरियल जो है, अब इसके साथ साथ जो एमिन एंड फर मटेरियल है, सिल्क है, वेलवेट है, तो इस तरह की चीज़ें जो है कहीं ना कहीं वहाँ पे हेल्प कर रही थी। तो ये वहाँ पे बताया गया था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंडेड दिस रिस्ट्रिक्शन एज यू नो फ्रॉम द चैप्टर 1। मेंबर ऑफ द जैकुलिन क्लब्स इवन कॉल देमसेल्व्स एज सन क्लूटर्स। अब जो जैकुलिन क्लब के मेंबर्स थे उनको भी सन क्लूटर्स के नाम से जाना जाता था। तो ये सारी आर्टोक्रेसी जो थी ये कहीं ना कहीं फैशनेबल भी थी, नी ब्रिचेस थी, ये सारी चीज़ें जो है ये लोग पहनते थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह के कपड़े हम पहन रहे हैं ये हमारा क्लास बताते थे कि हम किस क्लास से बिलोंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए बताया गया वुमेन ऑफ मिडिल क्लास वुमेन जो है उनका अलग ड्रेस कोड है। एक एंट्रिस्टिक कवल है जो कि ईव फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, देखिए उनका ड्रेस में फ़र्क दिखेगा। जो वॉलंटियर है उनका फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उनके ड्रेस में फ़र्क है। जो सान क्लोटस की फैमिली है उनके ड्रेसेस में फ़र्क है। तो ये जो है अलग अलग ड्रेसेस अलग अलग तरह से एक ड्रेस कोड डिसाइड किए गए थे सभी के लिए, और ये उनकी क्लास को रिप्रेजेंट करते थे। Clothing and a notion of beauty. Let's see what we have here in this. The end of the century laws and did not mean that everyone in the European society could now dress in the same way. The French Revolution had raised the question of equality and ended aristocratic privilege, as well as the laws and maintained those privilege. However, the difference between the social strata and remained. Clearly, the poor who could not dress like the rich nor eat the same food, but laws no longer barred people right to dress in the way they wished. Differences in the earning rather than the sumptuary laws now defined what rich and poor could wear, and different classes developed their own culture of dress. Notion of what was beautiful or ugly, proper or improper, decent or vulgar differed. अब देखिए यहाँ पे जो बताया कि एंड ऑफ सेंचुरी लॉज जो है इसका मतलब ये नहीं था कि यूरोपियन सोसाइटी के जो लोग हैं कि सबके सब एक ही तरह के ड्रेस पहनेंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब आया, क्वेश्चन रेज हुआ कि इक्वालिटी का, तो यहाँ पे जो है आर्टिक्रेसी प्रिविलेज जो था ये एंड किया गया। इसके साथ साथ और दूसरे जो प्रिविलेजेस हैं वो मेंटेन करने शुरू किए गए। इसमें जो था ये बेसिक जो डिफरेंस था ये था कि क्लियरली जो पुअर खा रहा है, जिस तरह के ड्रेस पहन रहा है, वो सारी चीज़ें सेम फूड नहीं करेंगे। बट लॉज जो थे ये किसी को बैरिड नहीं कर रहा था, वो जैसा चाहे वो कपड़ा पहन सकते थे, जिस तरह से रहना चाहे, जो खाना चाहे वो खा सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये जो डिफरेंस था कि अर्निंग में जिस तरह से जो लॉज आए थे, मतलब लॉ के अलावा कि पुअर किस तरह के कपड़े पहन सकता है, डेवलप्ड क्लास के लोग किस तरह के कपड़े पहन सकते हैं, उनके अपने अलग कल्चर, किसे वो अगली कहते हैं, किसे वो पुअर कहते हैं, किसे डिसेंट कहते हैं। तो ये सारी चीज़ों में बेसिकली चेंजेस था। Styles of clothing also emphasize the difference between men and women. Women in Victorian England were groomed from a childhood to be docile and dutiful, submissive and obedient. The ideal woman was one who could bear up pain and suffering, while men were expecting to be a serious, strong, independent, and aggressive. Woman was seen as a furious, dedicated, and passive. Docile norms of the clothing reflected these ideas. From the childhood, girls were tightly laced up, dressed in a stage, and the effort was strictly the growth of the near bodies and contained them within a small molds. When the slightly older girls had to wear the tight-fitting corset and tightly laced, small-waisted women are admired as attractive, elegant, and graceful. Clothing thus played a part in the creating the image of a फ्रेल सबमिसिव विक्टोरियन वुमन। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो स्टाइल थी क्लोथिंग की ये सभी लोगों के लिए क्या थी, डिफरेंट थी। मैन के लिए, वुमन के लिए। जो वुमेंस होती थी उनके जो विक्टोरियन इंग्लैंड के जो बच्चे होते थे उनको उसी के हिसाब से ग्रूम किया जाता था, उतना ही सबमिसिव, उतना ही ओबीडेंट होना पड़ता था। जो आइडल वुमेन होती थी वो बेसिकली ये सारे पेन को सफ़र करती थी कि मतलब किस तरह के जो कपड़े पहनने हैं उन्हें बेसिकली उन्हें सहनशील होना है, बेसिकली काफ़ी स्ट्रांग होना है, इंडिपेंडेंट, मतलब उन्हें जो है मेंस की कंपैरिजन में एक डिफरेंट स्टाइल में उनकी अब ग्रूमिंग होती थी। लेकिन अगर हम मेंस की बात करें तो वो उतने ही स्ट्रांग होंगे, अग्रेसिव होंगे, ये सारी चीज़ें उनमें पाई जाती थी। वुमेंस की अगर हम बात करें तो काफ़ी फियरलेस होगी, डेलिकेट होगी, पैसिव होगी, डोकाइल होगी। तो इस तरह से उनका पालन पोषण किया जाता था। इवन नॉर्म्स अगर क्लोथिंग की हम बात करते हैं, जो चाइल्डहुड गर्ल्स होती थी उन्हें भी बहुत ही
मतलब टाइटली लेस्ड अप ड्रेसेस पहनने होते थे और वो पहन के ही उन्हें रहने होते थे। उनकी बॉडी जो थी ये इस तरह से होती थी कि उनकी बॉडी की ग्रोथ रोक दे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्मॉल मोर जो होते हैं उनकी बॉडी उसी हिसाब से जो है वो बढ़ती थी, क्योंकि जो जितनी ज़्यादा पतली कमर होगी वो उतनी ही ज़्यादा सुंदर और मतलब बाकियों से अच्छी मानी जाएगी। तो इसी तरह से उनका बेसिकली क्या है, क्योंकि वो इन्हें एडमायर किया जाता था एज ए एलिगेंट और ग्रेसफुल, तो उनका जो हम कह सकते हैं जो ग्रूमिंग थी, जिस तरह से उनका पालन पोषण हो रहा था, कुछ इस तरह से ही किया जा रहा था। How did the woman react to these norms? Many women believed in the ideal of the womanhood. The ideals were in the air of breathing, the literature they read, the education they had received at school, at the home. From the childhood they grew up to believe that having a small waist was a womanly duty. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कई सारी जो औरतें थी वो ये इसमें बिलीव करती थी कि जो वॉमनहुड है, मतलब जो औरत है उनको किस तरह से रहना है, किस तरह की चीज़ें पढ़नी है, क्या एजुकेशन लेना है, क्या स्कूल जाना है, किस तरह से बच्चों को बड़ा करना है, उनका कितना ज़्यादा स्मॉल वेस्ट रहेगा जो वो उतनी ही उनके लिए अच्छा रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें जो थे वो पढ़ते और जानते थे। इसके साथ साथ टू बी सीन एज अट्रैक्टिव, और उन जिनकी इतना ज़्यादा जो सफरिंग पेन होता था ये इससे इसेंशियल होता था वुमन के लिए कि उनको इतना देखना है, क्योंकि वैसे ही वो अट्रैक्टिव दिखती थी। इसके साथ उनको कोर्सेट पहनना होता था जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता था उनकी बॉडी को, जो कि एक्सेप्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन स्टिल दे नीड टू वेयर दिस ऑल दिस थिंग्स बिकॉज इट शोज़ देयर वुमनहुड। But now everyone accepted these values. Over the 19th century, ideal changed by the 1830s. Women in the England began agitating for a democratic right. As the suffrage movement developed, many began campaigning for a dress reform. Women's magazines described how tight dresses and corset caused a deformity and the illness among young. Such clothing restricted body growth and hampered blood circulation. Muscles remained undeveloped and the spine cord remained. Doctors reported that the many women were regularly complaining of the acute weakness, felt language, and the fainted frequently. Corset then became necessary to hold up the weakened spine. अब देखिए ये जिस तरह का पहनावा हो रहा था कहीं ना कहीं ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मसल्स की ग्रोथ, स्पाइंस की ग्रोथ, बाकी सारी चीज़ों को ये अनडेवलप्ड कर रहा था, क्योंकि ये पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पा रही थी। तो इस तरह से जो है वुमेंस जो थी कहीं ना कहीं कंप्लेन करना शुरू करी थी कि ये बहुत सारी एक्यूट वीकनेस के लिए जो जिस तरह की लैंग्वेज फिल्ट होती थी, फेंटेड होती थी, वो बहुत सारी कंप्लेंट्स जो है आने लगी। तो ये कहीं ना कहीं इसको बंद करना था, लेकिन ये सारी चीज़ों को तभी सोचा नहीं गया था। और ये जो है कहीं ना कहीं जो कॉर्सेट पहनने का चल रहा था, इससे जो है वुमेंस की स्पाइंस भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो रही थी। In America, a similar movement developed amongst the white settlers on the Air Coast. Traditional famine clothes were criticized on a variety of grounds. Long skirts, it was said, swept in the grounds and collected filth and dirt. This caused illness, and the skirts were voluminous, difficult to handle. They hampered a movement and prevented a woman from working and earning. Reform of the dress, it was said, would change the position of a woman. If the clothes were comfortable and convenient, then the woman could work, earn and their living and become independent. In the 1870s, the National Women's Suffrage Association, headed by Mrs. Stanton, and the America Women's Suffrage Association by Lucy Stone, by the campaign of the dress reform. The argument was simply dress and shorten skirts and abandon the corset on the both sides of the Atlantic. There was now a movement of a rational dress reform. Now, the reforms did not immediately succeed at changing a social value. They had to face a radical hostility. Conservative everywhere opposed change. They lamented that the women who gave up traditional norms of the dressing no longer looked beautiful and lost their femininity and grace. Faced with the persistent attacks, many women reforms changed back in a traditional clothing to conform the conventions. By the end of the 19th century, however, the change was clearly in the air. Ideals of the beauty and styles of the clothing were both transformed under a variety of pressures. People began accepting the ideas of reformers, and they had earlier ridiculed. विद अ न्यू टाइम्स केम न्यू वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जिस तरह से यहाँ ये जो ट्रेडिशनल फैमिन की चली जा रही थी, जिस तरह की क्लोथिंग हो रही थी, कहीं ना कहीं ये क्रिटिसाइज़ होना शुरू हुई। और ऑन दी ग्राउंड्स जो स्वेप्ट ग्राउंड्स थी, मतलब ये कई तरह के फिल्थ और डर्ट भी जो है ले रही थी। तो मतलब बेसिकली इतनी लॉन्ग अगर स्कर्ट और जो भी जिस तरह की ड्रेस है और जिस तरह से उन्हें चलना होता था, तो क्या है कहीं ना कहीं काफ़ी सारा डर्ट और काफ़ी
अनवांटेड मटेरियल जो है, फिल्थी चीज़ें वो लेके चल रही थी। तो ये जो है कहीं ना कहीं इलनेस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करी थी। तो ये सारे मूवमेंट को हैम्पर करते हुए कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें की गई, कई सारे प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ा, कई सारे स्ट्रगल हुई ड्रेसेस को चेंज करने के लिए, एंड फाइनली सम हाउ दे चेंज द वैल्यूज़ ऑफ द ड्रेसिंग्स। न्यू टाइम्स, अब चलिए देखते हैं न्यू टाइम्स में क्या है। What were the new values? What created a pressure for change? Any changes were made possible in the Britain due to the introduction of a new material and technology. Other changes came about because the two world wars and the new working condition for women. Let us retrace our steps over a few centuries to see what these changes. New materials. For the 17th century, most ordinary women in Britain succeeded a very few clothes made of flax, linen, or the wool, which were beautiful and easy to maintain. Indian synthesis within a reach of the European who could now increase the size of their wardrobe. During the Industrial Revolution in the 19th century, they began the mass manufacture of the cotton textile, which it touched in many parts of the world, including in India. Cotton clothing are more accessible to a wider section of the people in Europe by early 20th century, and artificial fiber made clothing still easier to wash and maintain. In the late 1870s, heavy restrictive clothes, which had created such an image of a woman magazine, gradually discarded. Clothes got lighter एंड मैटर सिंपलर। अब देखिए यहाँ पे न्यू टाइम्स की बात की गई है, तो न्यू टाइम्स में जो है काफ़ी सारा चेंजेस हुआ। जो जिस तरह की ड्रेसेस भी पहनी जाती थी उनमें कई तरह के डिफरेंट फैब्रिक्स आने शुरू हुए, जैसे कि फ्लैक्स, लिनन, वूल, ये सारी चीज़ें आनी जब शुरू हुई तो ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए थोड़ी थोड़ी इजी होने लगी पहनने के लिए। इट्स इजी फॉर वॉशेबल, और नई तरह की चीज़ें, जो नई टेक्नोलॉजी है, तो कई तरह की नई फाइबर्स की क्लोथिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स की क्लोथिंग आनी स्टार्ट हुई, जो ईजिली मेंटेन करनी थी और साथ साथ वॉशिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ईजी थी। Yet until 1914, clothes were ankle length as they had been since the 13th century. By 1915, however, the hemline of the skirt rose dramatically to a mid-calf. Why this sudden change? ना चलिए अब देखते हैं क्या है द वॉर। अब वॉर से रिलेटेड क्या बताया गया। चेंजेस इन अ वुमेंस क्लोथिंग केम अबाउट अ रिजल्ट ऑफ अ टू world wars. Many European women stopped wearing a jewelry and luxurious clothes. As upper class women mixed with the other classes, the social barrier were eroded and the women began to dress in a similar ways. अब देखिए कई सारे चेंजेस जो है क्लोथिंग में देखने को मिली वर्ल्ड वाइड वॉर्स में, क्योंकि कई सारी जो यूरोपियन वुमेन थी उन्होंने कई तरह की ज्वेलरी जो है उसे पहनना बंद किया गया, लग्जूरियस क्लोथ्स जो थे उन्हें बंद किया। कई अपर क्लास की वुमेंस जो थी वो मिक्स हो गई अदर क्लासेस में, क्योंकि सोशल बैरियर्स के एरोडेड होने की वजह से। Clothes got shorter during the First World War of the practical necessity. Over 7 lakh women in Britain were employed in an ammunition factory. क्योंकि क्लोथ्स जो है धीरे धीरे क्या हुए, धीरे धीरे छोटे होते चले गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि प्रैक्टिकल की नेसेसिटी की वजह से। 7 लाख वुमेंस जो थी ब्रिटेन की, ये एम्प्लॉयड की गई अम्यूनिशन फैक्ट्रीज़ में। दे वोर अ वर्किंग यूनिफॉर्म ऑफ अ ब्लाउज एंड द ट्राउजर्स विद एक्सेसरीज सच एज द स्कार्फ्स विच वॉज later replaced by the khaki overalls and the caps. Bright colors faded from the sight and only sober colors were worn as the war dragged on. अब देखिए जैसे जैसे वॉर आया कहीं ना कहीं इनके ड्रेसिंग स्टाइल में भी जो चेंज होना शुरू हुआ, यानी जो जिस तरह का पहले स्कार्फ पहना जाता था उसकी जगह वो रिप्लेस होकर क्या हो गया, कैप्स में हो गया। ब्राइटेड कलर्स जो थे वो फेड होके लाइटर कलर्स, जो सोबर कलर्स होते थे, वो उन्होंने पहनना शुरू किया। Skirts become shorter and soon trousers become a vital part of the Western women's clothing, giving them a greater freedom of the moment. Most important, women took to a cutting their hair short for a convenience. So कई औरतों ने क्या किया, अपने बाल को काट लिया क्योंकि वो उनके लिए convenient थी. By the 20th century, a plain and the austere style came to reflect a seriousness and the professionalism. New schools for children emphasized the importance of a plain dressing and the discouraged ornamentation. Gymnastics and the game entered to the school curriculum for a woman. As women took to sports, they had to wear clothes that did not hamper a movement. When they went out to the work, they needed the clothes that were comfortable and convenient. So we see that the history of the clothing is linked to the larger history of the society. We saw how the clothing was defined and dominant culture, attitude, and ideals of the beauty. How these notions changed over the time, and we saw the reforms and the conservative struggle to shape this idea, and how changes within a technology and economy and the pressure of the new times made people feel a need of change. अब देखिए यहाँ पे बताया जैसे जैसे वॉर आया तो किस तरह से चेंजेस हुए। इसके साथ साथ कई सारी जो नई एथलेटिक एक्टिविटीज़ है वो स्कूल में लाई गई, तो उसके हिसाब से भी जो लड़कियाँ थी यानी जो वुमेन्स थी उनके लिए कन्वीनियंट ड्रेस आया।
अब जो औरतें घर पे रह रही हैं उन्हें घर के हिसाब से जो कपड़े हैं वैसे पहनने हैं, जब वो काम के लिए बाहर जा रही है जॉब के लिए तो जॉब के हिसाब से उन्हें कन्वीनियंट ड्रेस पहननी है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे जो कंजर्वेटिव स्ट्रगल्स थे उस सारी स्ट्रगल को पार करने के बाद एक नई तरह का चेंज आया, जो भी जिस तरह का ड्रेस उन्हें पहनना है उस तरह की चीज़ों में। तो कहीं ना कहीं चेंजेस जो थे ये नेसेसरी थे और नीडेड थे, और ये सारे प्रेशर्स जो थे न्यू टाइम्स के बाद लोगों ने फील किए और उसे चेंज किया। Transformation in the colonial India. That about India in this period, during the colonial period, there were a significant change in the male and female clothing in India. On the one hand, this was the consequences of the influence of the Western dress forms in the missionary activity. On the other, it was due to the effort by Indians to a fashion clothing style that embodied in the indigenous tradition and the culture. Clothing in fact become a very important symbols of the national movement. A brief look at the 19th century changes will tell us the great deal about the transformation of the 20th century. Then the Western style clothing came into India in the 19th century. Indians restricted in the three different ways. In the many, especially men, began incorporating some elements of the Western clothing in their dresses. The wealthy Parsis of the Western India were among the first to adopt a Western style clothing. Baggy trousers and the paventa were added to the long colorless coat with the boots and the walking stick to the complete and look of the gentleman. To the some Western clothes were a sign in the modernity and progress. Western style clothing was especially to attract to some section of the society who now found it liberating. Here too it was a man rather than the woman who affected the new dress styles. There were the others who were convinced that the Western cultures would into a loss of the traditional cultural identity. The use of Western style clothes taken a sign of the world turning upside down, and the cartoon of the Bengali Babu show here mocks him for the Western style boots and hat and the coat. How did his and along with his dhoti. Since some men resolved this dilemma of the Western clothes without giving up in the Indian ones, many Bengali bureaucrats late 19th century began stocking the same Western style clothes for work outside the change into a more comfortable clothes at home. Early the 20th century, the Arthur Prost variant Elvin and embedded the policeman in the Pune who going to duty would take their trousers in the street and the walk home just in tunica undergarment. This difference between the outer and the inner world is still observed by the some men today. Still, there are slightly different solution in the same dilemma. They are attempting to combine Western and Indian forms of dressing. These changes in clothing, however, had a turbulent history. अब देखिए यहाँ पे बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ कॉलोनियल इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो आप इंडिया में भी आपने कई चेंजेस देखे होंगे। जो शुरुआती दौर का इंडिया था, जिस तरह की ड्रेसिंग स्टाइल तब चलती थी, उसके बाद में और अब में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हमें देखने को मिलता है। ड्रेसिंग स्टाइल में जो है बहुत सारे चेंजेस हुए, लोगों के पहनावे उड़ावे में कई तरह के चेंजेस हुए। अगर हम बंगाल की बात करें तो कलकत्ता में जिस हिसाब का ड्रेस चलता था वहाँ के लोगों में, मेंस और वुमेन्स में, उसमें भी ड्रेसेस में चेंजेस देखने को मिले। इसके साथ अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो जो कई सारे क्रिश्चियंस थे हमारे इंडिया में, वो पहले साड़ी और बाकी की चीज़ें पहनना पसंद करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है वेस्टर्न कल्चर से भी इन्फ्लुएंस होना शुरू हुए। उन्होंने अपना ड्रेस कोड जो है बेसिकली चेंज करना शुरू किया। तो कई सारा ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये कॉलोनियल इंडिया में भी उस टाइम पीरियड में देखने को मिला था। So here we see the caste conflict and the dress change. Though there were no formal sumptuary laws in the Europe, India had its own strict social codes for food and dress. The caste system clearly defined what subordinate and dominant caste Hindus should wear, etc. And these codes had to force of the law. Change in the clothing style that threatened these norms, therefore often creating a violent social reaction. In May 1822, women in the Shanar caste and attacked by a knives in public places in the southern princely state of the Travancore for wearing a cloth across the upper bodies. Over subsequent decades, the violent conflict over a dress code ensured. The Shanaras, many of who were considered as a subordinate caste and were generally prohibited from using umbrellas and wearing shoes, golden ornaments. अब देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या बताया गया है, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट से जो ड्रेस चेंजेस हैं, यानी जो हाई, सपोज मान लीजिए कोई रिच पर्सन है तो रिच पर्सन जो है अम्ब्रेला लेगा, गोल्डन ज्वेलरी पहनेगी और भी सारी चीज़ें जो है वो करते हुए वेयर स्टाइल में रहेंगी। लेकिन अगर हम दूसरी कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें तो उसमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलती थी। उनको अपने ही मीडियम के हिसाब से बेसिकली जिस भी क्लास से बिलोंग करें अकॉर्डिंगली उन्हें ड्रेस पहनना होता था। अगर हिंदूज़ की बात करें तो हिंदू के लिए जो ड्रेस बनाया गया, जिस तरह का ड्रेसिंग सिस्टम है उनको वो फॉलो करना है।
क्रिश्चियंस की बात करें तो उनके लिए जिस तरह का ड्रेसिंग सिस्टम बनाया गया उन्हें वो फॉलो करना है, और ये सारे रूल्स जो थे बाय लॉ काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। तो अकॉर्डिंग टू देयर कास्ट एंड रिलीजन जो चीज़ें उनके लिए सेट की गई थी उन्हें वही पहनना। मैन और वुमेन जो है वो उसी तरह के लोकल कस्टम में जो है उनको बेसिकली अपनी बॉडी को कवर करना होता था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे उसके बारे में बताई गई कि किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते थे। अब हम देखेंगे ब्रिटिश रूल एंड ड्रेस कोड। How did the British react to the Indian ways of dressing? How did the Indians react to the British attitude? In different culture, specific items of the clothing often convey a contrary meaning. This frequently leads to the misunderstanding and conflict. Styles of the clothing in the British India change through the such conflict. Consider the case of the turban and the hat. Even European start began frequenting India, they are distinguished from the Indian urban turban wearers as the hat wearer. These two hedges not only the look different, they also signify the different things. अब देखिए यहाँ पे बात की गई है जो टर्बन्स है, जैसे अगर हम बात करें टर्बन्स की, जो एक टर्बन पहनते थे और जो हेड पहनते थे उनमें भी बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस होता था। मतलब कल्चरल सोसाइटी बेस्ड भी अगर हम बात करें तो इन सारी चीज़ों का डिफरेंट मतलब होता था। अगर कोई ये चीज़ वेयर कर रहा है तो वो अलग है, और कोई डिफरेंट चीज़ जो वेयर कर रहा है तो उसमें जो है बेसिकली डिफरेंस आपको देखने को मिलता था। अब देखिए कई सारे जो इंडियंस हैं वो भी एक तरह हम कह सकते हैं कि एक तरह से उनका ये पहनना, उनका वोर करना एक पेशा हो चुका था। जैसे कई टर्बन्स जो हैं वो कॉन्शियसली जो है वो रीजनल और नेशनैलिटी के बेसिस पे भी पहनते थे कि हम इस पर्टिकुलर चीज़ से बिलोंग करते हैं तो हमने इस तरह की चीज़ें पहनी है। तो कुछ इस तरह से भी जो है वो चीज़ें चल रही थी एज अ ड्रेस कोड। At the same time, Indians were expected to wear Indian clothes to office and follow the Indian dress code in 1824 and 28। अब देखिए इस टाइम पे क्या था, जो भी इंडियंस थे उनको भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो इंडियन स्टाइल की ही क्लोथिंग पहन के जो है वो वापस आए, मतलब उसी तरह का उनका ड्रेस कोड हो। गवर्नर जनरल एमहर्स्ट insisted that the Indians take their shoes off as a sign of the respect when they appeared before him, but this was not strictly followed by the mid-19th century when Lord Dalhousie was a governor general. shoe respect was made stricter। मतलब उन्होंने देखिए लॉर्ड डलहौजी के आने के बाद जो है मिड-19th सेंचुरी में उनके जो रूल्स थे, जिस तरह की चीज़ें उन्हें पहननी थी उनको बेसिकली उन्हीं तरह की चीज़ें पहननी थी और वही सारी चीज़ों को फॉलो करना था। तो ये सारी चीज़ें उनसे बनाई गई थी। मैनी इंडियंस गवर्नमेंट सर्वेंट वर इंक्रीजिंगली अनकम्फर्टेबल विद दिस रूल्स। और इस तरह का जो ये रूल उन्होंने लाया था इसके साथ वो काफ़ी ज़्यादा क्या थे, अनकम्फर्टेबल थे, उन्हें वो चीज़ नहीं पसंद आई। इन 1862 there was a famous case of the defense of the shoe respect rule in a Surat courtroom. Mokiji Causeway Ente and the ancestor in the Surat Fauzi Adalat and refused to take off his shoes in the court of the session judge. The judge insisted that they take off his shoes as that was the Indian way of showing respect to the superiors, but Mukherjee remained adamant and he was barred the entry into the courtroom and he sent a letter of a protest to the governor of Bombay। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने गलती से क्या कर दिया इस जगह पे, मतलब एज अ रिस्पेक्ट जो है हम शूज़ उतार के हम रिस्पेक्ट देते थे, ये वे ऑफ इंडियन कल्चर था देने का। बट जो पर्सन थे जो उस समय उस कोर्ट रूम में थे उन्होंने इसको ऐसा अपना अपमान माना और इस अपमान की वजह से उन्हें कोर्ट रूम में आने की एंट्री नहीं दी गई। उसके बदले उन्हें लेटर भी भेजा गया कि जो उन्होंने किया ये एक तरह का वे है गवर्नर के प्रोटेस्ट करने का। तो इस तरह से उन्होंने जो है ये चीज़ मानी गई। तो ये कहीं ना कहीं जो कल्चर हमारे यहाँ एज अ रिस्पेक्ट ट्रीट किया जा रहा था वो कहीं ना कहीं वो प्रोटेस्ट का भी कारण बन रहा था, मतलब जिस तरह से चीज़ें हो रही थी तो ये थोड़ी अलग थी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये तरीका है, मतलब इंडियन का ये जो तरीका है कि वो इंडियंस जो है अपना किसी भी ऐसी पवित्र जगह पे या किसी ऐसी घर में उतरने से पहले क्या करते हैं, वो शूज़ उतार देते हैं। ये हमारी कल्चर है, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा वहाँ पे माना गया। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी अलग थी। इंडिया अर्ज दैट टेकिंग ऑफ शूज़ इन अ सैक्रेड प्लेसेस एट होम वाज लिंक्ड टू द टू डिफरेंट क्वेश्चन। वन, देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ अ डर्ट एंड फिल्थ एंड शूज़ कलेक्टेड द डर्ट ऑन द रोड एंड द डर्ट कुड नॉट बी अलाउड इन टू अ स्पेस दैट वीयर क्लीन पर्टिकुलरली। देखिए इंडियंस के लिए ये चीज़ों को मानने का डिफरेंट रीज़न था। वो ये था कि कई सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम शूज़ पहन के नहीं जा सकती, क्योंकि शूज़ में कहीं ना कहीं डर्ट और फिल्थ जो है ख़राब चीज़ें वो लगी होती है, तो क्लीन प्लेसेस पे उनका होना ठीक नहीं है। वो रीज़न ये था शूज़ उतारने के पीछे का, पर वो जो है किसी और वे में कहीं ना कहीं लेके उसे जा रहे थे। अब देखिए डिज़ाइनिंग अ नेशनल ड्रेस। अब नेशनल ड्रेस जो है वो किस तरह से डिज़ाइन किया गया, चलिए हम देखेंगे आगे।
The nationalist feeling swept across the India by a late 19th century. Indians began a devastating culture symbols that would express the unity of the nation. Artists looked for a national style of art and wrote a national song. Then the debate began over the design of the national flag. The search for national dresses was a part of this and define the cultural identity of the nation in a symbolic ways. If a conscious experiment with a dress engaged men and women are upper classes and caste in a many part of India, the Tagore family Bengal experimented a beginning in the 1870 with the design of the national dress for both men and women in India. Rabindranath Tagore suggested that instead of combining Indian and European dress, India's national dress should combine elements of a Hindu and Muslim dress. Thus, the chapkam, a long button coat, was considered as the most suitable dress for a man. There were also attempts of a develop a dress style that draw a tradition of a different region in the late 1870s. Janandini Devi, wife of a Satyendranath Tagore, was the first Indian member of the who returned to the Bombay to Calcutta, and she adopted the Parsi style of wearing the sari pinned to the left shoulder with a brooch and worn a blouse and shoes. This was quickly adopted by the Brahmo Samaji woman and came to be known as the Brahmika sari, and style gained acceptance before the long among the Maharashtrian and the प्रदेश ब्राह्मो एज वेल एज द नॉन ब्राह्मोस। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह का डिज़ाइन लिया गया। जैसे जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे और जो इन्होंने क्या दिया, कहीं ना कहीं जो है वो ड्रेसिंग स्टाइल में कई तरह के चेंज पा रहे थे। तो उनका कहना था कि अलग अलग ड्रेस और जिस तरह से हम यूरोपियन स्टाइल से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो ना हो कि अगर हम किसी तरह का ऐसा डिज़ाइन निकालें जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक तरह से पहन सके। तो उन्होंने निकाला एक नेशनल ड्रेस, दोनों को कंबाइन करके जिसका नाम उन्होंने दिया छापकम, जो कि एक लॉन्ग बटन कोट होता था, जो कि ये सूटेबल कंसिडर किया जाने लगा पूरे मेंस के लिए। अगर इसकी जगह अगर वुमेंस की बात करें तो जनार्दन देवी जो थी, जनार्दनंदिनी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अलग तरह का ड्रेस स्टाइल निकाला जो कि पारसी तरह का था। ये जो बॉम्बे कैलकाटा से बॉम्बे आई हुई थी, इन्होंने जो अडाप्ट किया वो पारसी वेयरिंग स्टाइल था, मतलब लेफ्ट शोल्डर पे बेसिकली पिनअप करना, साड़ी और ब्लाउज पहनना, इस तरह की चीज़ें उन्होंने ली। फिर यही साड़ी जो है इस तरह का पैटर्न ये काफ़ी लोगों द्वारा क्या किया गया, क्विकली अडाप्ट किया गया और फिर इसे ब्राह्मिका साड़ी के नाम से भी जाना लगा। जो ब्राह्मो समाज है या नॉन ब्राह्मो समाज है उन्होंने भी इसे क्या किया, एक्सेप्ट किया और बाकियों ने भी इसे पहनना शुरू किया। जैसे कि स्टाइल यहाँ पे देखिए बताई गई है किस तरह की स्टाइल है जो गेन की गई है सबके द्वारा। अब हम देखेंगे द स्वदेशी मूवमेंट। You have read about the Swadeshi movement in the Bengal in the first decade of the 20th century. If you reflect back on the movement, you will realize that it was centrally linked to the politics of the clothing. What was the politics? You know that the British first came to a trade in the Indian textiles that were in a great demand all over the world. India accounted for 1/4 of the world's manufactured goods in the 17th century, and there were 1 million weavers in the Bengal alone in the middle of the 18th century. However, the Industrial Revolution in the Britain, which mechanized the spinning and weaving and greatly increased and demand for a raw material such as the cotton and the indigo, changed the India's status in the world economy. Political control of the India helped the British in two ways. India peasants could be forced to grow a crop such as indigo, and cheap British manufacture easily replaced the coarser India one, and the larger number of the Indian weavers and spinners were left without work, and the important textiles weaving in centers such as the Murshidabad and Machilipatnam and the Surat declined as the demand fell. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है किस तरह से जो है अलग अलग स्टाइल की चीज़ें जो है यूज़ करना शुरू किया गया। मतलब बेसिकली जो है नई नई तरह की जो फैब्रिक है उन्हें उनके लिए जो है ब्रिटिश ने उन्हें फोर्स किया कि उस तरह के फैब्रिक को उगाया जाए और फिर जो है उसके रिप्लेसमेंट में वो कुछ नया लाए। तो इसके पीछे उनका जो था बहुत बड़ा अपना पॉलिटिक्स था। कहीं ना कहीं जो है चीप क्वालिटी का है इसे रिप्लेस करके वो अच्छी क्वालिटी का लेके आएंगे तो उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी और हमारी कम हो जाएगी। और बेसिकली ये जो है इस तरह का जो चीज़ हो रहा है इसकी डिमांड को फेल कर देगा, गिरा देगा। Yet, by the middle of the 20th century, large numbers of the people began boycotting a British or a milli-made cloth and adopting a khadi, even though it was a coarse and more expensive and difficult to obtain. How did this change come about? अब देखिए फिर भी ये सारी जो चीज़ें हुई तो 20th century में कई सारे लोगों ने ब्रिटिश मिल से जो क्लोथ बन रहे थे उनको पहनना बंद कर दिया और स्वदेशी को अपनाना बेसिकली शुरू किया। यानी जो हमारा खादी है उसे हम उन्होंने पहनना शुरू किया जो कि काफ़ी महंगा है और काफ़ी डिफ़िकल्ट है
फिर भी उन लोगों ने उसे ही चूज़ करना शुरू किया। तो ये चेंज कैसे आया? इन 1905 द लॉर्ड कर्जन डिसाइडेड टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल टू कंट्रोल द ग्रोइंग अपोजिशन इन द ब्रिटिश रूल। द स्वदेशी मूवमेंट डेवलप्ड अ रिएक्शन टू दिस मेजर। पीपल वर अर्ज्ड टू बॉयकॉट अ ब्रिटिश गुड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ स्टार्ट देयर ओन इंडस्ट्रीज। अब देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, कहीं ना कहीं जो लॉर्ड कर्जन है उन्होंने डिसाइड किया कि पार्टीशन कर दिया जाए, किसका? बंगाल का, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वहाँ का कंट्रोल है वो खोता जा रहा था ब्रिटिश रूल का। और इसी तरह से लोगों ने क्या किया, स्वदेशी मूवमेंट को अपनाना शुरू किया। इसका रिएक्शन ये हुआ कि पीपल ने जो भी ब्रिटिश गुड है, जिस तरह की चीज़ें वो दे रहा है, बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, उन सारी चीज़ों को बॉयकॉट कर दिया गया। सिगरेट और बाकी की चीज़ों का सबका प्रोटेस्ट किया गया और खुद की बनाई हुई चीज़ें जो है उसका यूज़ करना शुरू किया गया। The change of address appealed largely to the upper caste and the classes rather than to those who had to make to do with the chases, could not afford the new products. After 15 years, many among the upper classes also returned to wearing a European dress. अब देखिए कई सारे जो है यहाँ पे चेंजेस हुए और उसके बाद अपर कास्ट के जो लोग थे जो वो सारी चीज़ों को यूज़ करते थे, उन्होंने क्या किया, न्यू प्रोडक्ट को, जो नए प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकते थे, आफ्टर 15 ईयर्स जो है उन्होंने भी वापस से उसी तरह का यूरोपियन ड्रेस पहनना शुरू कर दिया। मतलब शुरू में जो चीज़ छोड़ी गई थी उसे वापस से स्टार्ट किया गया। दो मैनी पीपल जो है दे रेड टू द कॉज ऑफ द नेशनलिज्म दिस टाइम एंड इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कम्पीट विद द चीप ब्रिटिश गुड एंड हैड अ फ्लडेड द मार्केट। अब देखिए ये उस टाइम पे जो था कहीं ना कहीं ये नेशनलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। जिस तरह का वो प्रोडक्ट दे रहा था जो काफ़ी सस्ते और कम बजट में मिल जा रहा था और जो जितना हमारा महंगा था, कहीं ना कहीं एक ऐसा नेशनल प्रोडक्ट ही आया था कि लोग उसको यूज़ करने के लिए ज़्यादा मजबूर हो गए थे इसके कंपैरिजन में। डिस्पाइट इट्स लिमिटेशन द एक्सपेरिमेंट विद द स्वदेशी गेव अ महात्मा गांधी इंपॉर्टेंट आइडिया अबाउट यूजिंग अ क्लोथ एज अ सिम्बॉलिक वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। और कहीं ना कहीं जो है ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट भी महात्मा गांधी जी के लिए आया जहाँ पे उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो इसे एक स्वदेशी मूवमेंट को, मतलब खुद के बने हुए क्लोथ को एज अ एक वेपन भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। महात्मा गांधी से एक्सपेरिमेंट विद क्लोथिंग। अब महात्मा गांधी का क्या एक्सपेरिमेंट था क्लोथिंग से, चलिए वो देखेंगे हम आगे। The most familiar image of Mahatma Gandhi is of him skated in a chested and in a short dhoti at the spinning a wheel, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। जो इमेज है ये बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर इमेज है, आपने हर जगह देखी होगी। मेड स्पिनिंग ऑन द चरखा एंड द डेली यूज़ ऑफ अ खादी, और वो उससे बेसिकली खादी की चीज़ें जो है वो बनाने का काम कर रहे हैं। और ये जो है काफ़ी पावरफुल सिम्बॉल्स था, और ये बेसिकली सिम्बॉल ऐसा जो था ये सेल्फ रिलायंस से रिलेटेड था, जो रेजिस्ट करता है ब्रिटिश मिल की बनी हुई क्लोथों को यूज़ करने से। महात्मा गांधी ने एक्सपेरिमेंट जो किया था, कहीं ना कहीं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये चेंज जो है वो काफ़ी आया था इससे। एज अ बॉय फ्रॉम अ गुजराती बनिया फैमिली ही यूजुअली वोर अ शर्ट विद अ धोती और अ पजामास एंड समटाइम्स अ कोट। क्योंकि वो एक बनिया फैमिली से बिलोंग करते थे गुजराती, तो वो उनका जो ड्रेसिंग स्टाइल था वो कुछ इस तरह का ही होता था कि वो धोती पहनते थे, शर्ट और पजामा, और उसके ऊपर कोट पहनते थे। When he went to the London to study the law, a boy of 1888, he cut off the tuft and his head and dressed in a western suit so that he would be not be laughed at. अब बेसिकली जब वो यहाँ से वहाँ गए, वेस्टर्न कल्चर उन्होंने देखा तो उन्होंने वहाँ की चीज़ों को पहनना और करना शुरू किया ताकि वो उनके बीच रह के एक हंसी का पात्र न बने जिस तरह का कपड़ा वो पहन रहे हैं। ऑन हिज रिटर्न ही कंटिन्यू टू वेयर द वेस्टर्न सूट, और जब वो लौटे थे तब वो वेस्टर्न सूट ही पहन रहे थे उसी में। टॉप्ड विद अ टर्बन, वो भी टर्बन के साथ। एज अ लॉयर ही जॉनसनबर्ग द साउथ अफ्रीका इन 1890 ही स्टिल वोर अ वेस्टर्न क्लोथ, और जब वो जॉनसनबर्ग गए तो वहाँ पे उन्होंने सेम तरह का ही कपड़ा पहना जो कि उनका वेस्टर्न क्लोथ था। सून ही डिसाइडेड दैट द ड्रेसिंग इज अनसूटेबली वॉज अ मोर पावरफुल पॉलिटिकल स्टेटमेंट, और सुन ही उसको क्या बहुत ही जल्दी उनको ये रियलाइज़ हुआ कि जो ड्रेस है जो कि काफ़ी ज़्यादा अनसूटेबल है, ये बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल स्टेटमेंट है लोगों का जिस तरह की चीज़ें वो पहन रहे हैं। In Durban, in 1913, the Gandhi first appeared in the lungi and kurta with his head and shaved as a sign of a mourning to protest against the shooting of the Indian coal miners. उसके बाद क्या उन्होंने ये कहीं ना कहीं सीखा और समझा, और उसके बाद उन्होंने लुंगी और कुर्ता पहनना शुरू किया। उसके साथ उन्होंने अपना पूरा हेड शेव कर दिया, और ये एक साइन था इस चीज़ का कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बाकी चीज़ों का। ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया इन 1950, he decided to dress like a Kathiwadi peasant. Only in 1921 did he adopt the short dhoti, the form of a dress he wore until his death on 22 September 1921, a year after launching a non-cooperation movement which sought a Swaraj in a 1 year be announced. और जो इनका रिटर्न था उसके बाद ही जो है उन्होंने शॉर्ट धोती और बाकी की चीज़ें इस तरह का पहनना शुरू किया। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं उसके 1 year आफ्टर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, और सून ही हम क्या है वो अपने स्वराज को हम बोल पाए, ये अनाउंस हुआ।
I propose to discard at least per 31st of October my topi and the rest of them I contain myself with a loncho and the chadar whenever the necessary is protect of my body. I adopt the change because I have always hesitated to advise anything I may not be prepared to follow. अब देखिए यहाँ पे गांधी जी ने कुछ बातें बताई हैं, जैसे कि ये सारी जो चीज़ें उन्होंने एक्सेप्ट की और जो इस तरह की टोपी और बाकी की चीज़ें पहनते थे वो कहीं ना कहीं अपने आप को कंटेन कर रखना चाहते थे, और जो चादर वो ओढ़ते थे वो कहीं ना कहीं वो उनके प्रोटेक्शन के लिए होता था बॉडी का। और ये चेंज जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया था, उसको कहीं ना कहीं बोलने में या एडवाइस देने में वो हेजिटेट होते थे क्योंकि शायद वो उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे। In this time he did not want to use the dress all of his life and only wanted to experiment for a month or two, but soon he saw his duty to the poor and he never wore any dress, and he consciously rejected the well-known cloth of the Indian aesthetic and adopted the dress of the poorest Indian khadi, white, and the वर्स वॉज टू हिम एंड साइन ऑफ प्योरिटी एंड सिंप्लिसिटी एंड पोवर्टी। अब देखिए जिस तरह का ड्रेस वो पहले पहनते थे उसको बाद में उन्होंने कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया उसको पहनने से, और वो एक तरह की सिंपल कपड़ों को ही पहनना उन्होंने चूज़ किया, जिसमें वो धोती पहनते थे, शॉर्ट धोती जो कि खादी की होती थी एज अ प्योरिटी। इट वॉज अ साइन ऑफ अ प्योरिटी एंड सिंप्लिसिटी एंड द पोवर्टी की किस तरह की चीज़ें पहनी, उन्होंने उसी चीज़ को जो है अपना सिंबल बना लिया नेशनलिज्म का, और रिजेक्शन किया सारे ही जो भी वेस्टर्न मेल के मेडेड क्लोथ थे उन सारी चीज़ों का। Wore the short dhoti without a shirt when he went to the England at the Round Table Conference in 1931. He refused to compromise and wore it even before a King George V at Buckingham Palace. When he was asked by a journalist, "Whatever was your wearing enough clothes to go before the king?" he joked that the king had enough on for both of us. अब देखिए उन्होंने बात क्या की, जब वो बकिंगम पैलेस में बेसिकली जो किंग जॉर्ज थे फिफ्थ उनसे जब वो मिलने गए तो उन्होंने उस टाइम पे भी जो है पूरे कपड़े पहनने से मना कर दिया था, और जो उन्होंने पहना था उसी को पहन के गए। तो उस पर एक जो जर्नलिस्ट था उन्होंने उनसे पूछा क्या जो आपने कपड़े पहने क्या वो इनफ है, क्या उतने काफ़ी हैं एक राजा के सामने जाने के लिए? तो उन्होंने कहा कि जो किंग जॉर्ज है उन्होंने ऑलरेडी हम इतने कपड़े पहने हुए हैं कि वो हम दोनों के लिए काफ़ी हैं। नॉट ऑल कुड वियर अ खादी। अब देखिए कौन खादी नहीं पहन सकता है की बात हो रही है यहाँ पे, तो चलिए देखेंगे वहाँ क्या है। Mahatma Gandhi's dream was to clothe a whole nation in the khadi. He felt the khadi would be a means of erasing a difference between the religion and class. It is easy for others to follow in his footsteps. Why? Such as a unity possible, not many could take to a single peasant launch a loin cloth, and he had, nor did the all want to do. Here are some examples of the other responses to the Mahatma Gandhi's call. Nationalists such as the Motilal Nehru, successful barrister from the Allahabad, gave up his expensive western style suit and adopted the Indian dhoti and kurta, but these were not made of the coarse cloth. अब देखिए उन्होंने जो है बेसिकली इनकी जो स्टाइल थी उनको किन्होंने ने लिया। देखिए जो नेशनलिस्ट थे यानी जो मोतीलाल नेहरू थे वो भी एक बहुत सक्सेसफुल बैरिस्टर थे जो कि इलाहाबाद से थे। उन्होंने कई तरह के जो एक्सपेंसिव क्लोथ वो पहनते थे उनको पहनने से उन्होंने मना किया, और दूसरा जो अडॉप्ट किया वो उन्होंने इंडियन धोती और कुर्ता किया, लेकिन वो भी जो है उस प्रोडक्ट का है बेसिकली, यानी उस कोर्स क्लोथ का मेड नहीं था, वो थोड़ा डिफरेंट था। Those who had been deprived by the caste norms of the centuries were arranged to the Western dress style. Therefore, unlike the Mahatma Gandhi, the other nationalists such as the Baba Saheb Ambedkar never gave up the Western style suit. Many Dalit began to the early 1910 wear the three-piece suit and shoes and socks on a public occasion as a political statement of the self respect. अब देखिए जो गांधी जी ने कहा उसके बाद अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें तो उन्होंने इस चीज़ को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने जिस तरह का वेस्टर्न स्टाइल जो वो पहनते थे, जो भी वेस्टर्न कोट का स्टाइल था, जो शूज़ और शॉक्स पहनना था, ये सारी चीज़ें उन्होंने कंटिन्यूसली ही पहनते हैं एज अ साइन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, एज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट उन्होंने उस चीज़ को पहना और आगे तक ले गए। A woman who wrote a Mahatma Gandhi from Maharashtra in 1928 said, "A year ago I heard you speaking on the extreme necessity of every one of us wearing a khadi and thereupon decided to adopt it. But we are poor people and my husband says the khadi is costly. Belonging as I do to Maharashtra, I wear a sari 9 yards long. The elder will not hear of any reduction to a 6 yards. The other women like Sarojini Naidu and Kamala Nehru wore colored saris and designed instead of the coarse white homespun." अब देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एक लेडी थी जो कि महाराष्ट्र थी, उन्होंने बताया कि वो जो चीज़ें कह रहे हैं पहनने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि 9 हाथ की जो साड़ी है वो पहन रही है,
वो पूरी कोरस हो और उसी चीज़ की बनी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और उनके लिए पॉसिबल नहीं है इतना ज़्यादा पहनना। वो हालांकि रिड्यूस होकर 6 यार्ड्स की हो गई, जबकि उनके 9 हाथ की होनी चाहिए थी। तो ये कहीं ना कहीं जो था ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था सबके लिए। और इसकी जगह पे जो अदर वुमेंस भी थी वो अलग तरह की डिफरेंट साड़ी पहनती थी ऐसा, और उसे उसी तरह से शो करती थी। तो ये चीज़ें वहीं पे बताई गई है। तो कंक्लूजन बेसिकली यहाँ पे यही निकला है कि किस तरह का कल्चर होता था, सबकी कास्टिज़म, किस क्लास से वो बिलोंग करते थे, सबकी क्लोथिंग उसी स्टाइल पे ही डिपेंड करती थी और वही पहना है। यानी जिस तरह के कपड़े आप पहनते थे वो आपका क्लास बताते थे, आप किस क्लास से बिलोंग करते थे, किस तरह का प्रोफेशन है। इवन आज की जनरेशन में अगर हम बात करें तो हम क्या पहन रहे हैं, हमारा ड्रेस कोड बताता है हम किस एरिया से, किस जगह से, किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, किस क्लास से बिलोंग करते हैं। तो यू मस्ट हैव सी दिस changes as well as this observation by yourself in your socialism. I hope you understood this chapter. In case if you have any doubt regarding this, you can ask me anytime. Thank you for the day.